इसमें क्या डाउट है? लिंक भेज दो, मैं करता हूँ, मेरे पास डेटा है। भाई थोड़े भाई एक लाइट बंद करो। So we have a block kept on an inclined plane of inclination theta, right? Now where will be the direction of weight? Weight will always be vertically down. Weight will always be vertically down. mg down रहता, ठीक है? mg के दो components निकालते, दो rectangular components, एक normal to the plane और एक along the plane. एक normal to the plane and एक along the plane. तो mg cos theta, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाता, अग्रीड? ये एंगल भी थीटा हो जाता. So this angle is also theta. Now the reason for that is, I told you many times, this is perpendicular to this and this is perpendicular to this. If angle between these two is theta, angle between their perpendiculars is also theta. Angle between their perpendiculars is also theta. And whenever you take out rectangular components of any vector, the two rectangular components must be on the either side of the vector. This is the vector. वेक्टर के एक साइड जो है ना, एक कंपोनेंट रहता, वेक्टर के दूसरे साइड एक कंपोनेंट रहता. मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर? जिस कंपोनेंट के साथ थीटा लगा हुआ रहता और जिस थीटा के एडजेसेंट कंपोनेंट रहता वो cos थीटा होता, ठीक है? जिस कंपोनेंट पे थीटा टच नहीं करता, that means the component that is not adjacent to theta, the component that is not adjacent to theta, वो क्या होता है? mg sin theta. ये वेक्टर्स में सबसे पहली बार देखे थे हम लोग जब r जो है ना पोजीशन वेक्टर डाले थे ओरिजिन से कुछ एंगल थीटा एट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसका r cos थीटा जो है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ था, r sin थीटा क्या हुआ था? वर्टिकल कंपोनेंट हुआ था. ठीक है, क्लियर? नाउ टेल मी हियर mg cos theta is pushing the block into the plane. Do you agree? mg cos theta का डायरेक्शन क्या है? into the plane है. तो प्लेन क्या करता? नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करता. नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करता. नॉर्मल रिएक्शन कैसा रहता? इक्वल एंड ऑपोजिट टू mg cos theta. तो n will be equal to mg cos theta. Do you agree? And this mg sin theta is along the plane. mg sin theta कहाँ है? Along the plane है. दिखाई दे रहा? Along the plane है. Now the only force that can oppose this mg sin theta is फ्रिक्शनल फोर्स. इधर जो है ना फ्रिक्शनल फोर्स रहता, इधर जो है ना क्या रहता? फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे है, ठीक है? अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स का सिंबल जो है ना जनरली स्मॉल f से रहता, ठीक है? तो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ देयर आर टू केसेस. आई टोल्ड यू दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स.
Now whenever the applied force, suppose there is some applied force along the surface, applied force along the surface क्या है यहाँ पे, mg sin theta है. If that mg sin theta, if that mg sin theta if that mg sin theta exceeds the limiting friction or limiting friction, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आता, इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन आता. फ्रिक्शनल फोर्स कितना आता, इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. बट इफ दैट फोर्स दैट इज एक्टिंग अलोंग द सरफेस इज लेस देन limiting friction, then frictional force will adjust itself to that value. Then the frictional force will adjust itself to that value. समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप लोग? पहली बात लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख देना. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन. म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन. म्यू तो दे दिया, म्यू नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा है, तो एफ लिमिटिंग कितना है, mg म्यू mg cos थीटा है. म्यू mg cos थीटा है. समझ में आई बात? Now, if mg sin theta is less than or equal to f limiting, if mg sin theta is less than or equal to f limiting, then friction will adjust itself to that value. mg sin theta हो जाता, friction क्या हो जाता, mg sin theta हो जाता. समझ में आई बात? और net force क्या हो जाता, zero. और block accelerate नहीं करता along the plane, along down the plane, block accelerate नहीं करता. ठीक है? तो यहाँ पे देखो, if mg sin theta is greater than f limiting, if mg sin theta is greater than f limiting, then frictional force will become equal to f limiting, and then the block will accelerate down the inclined plane. Acceleration कितना रहता बाद में देखेंगे, ठीक है? बट ये फैक्ट है. समझ में आया? ठीक है. Now suppose mg sin theta is greater, then net force कितना आता ब्लॉक पे, mg sin theta down the inclined plane. इधर देखो, mg sin theta down the inclined plane और म्यू mg cos थीटा अप द इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करता. फ्रिक्शन क्या करता, अपोज करता. तो अपोज कर रहा ना यहाँ पे, तो mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है माइनस mg म्यू mg cos थीटा अप द इंक्लाइंड प्लेन है, तो नेट फोर्स क्या हो जाता, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा. मगर नेट फोर्स को क्या बोल सकते हैं, ma बोल सकते हैं. तो a इक्वल टू क्या आता, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ब्रैकेट में अगर ले लिए तो. और ये a का डायरेक्शन क्या रहता, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. समझ में आया? अच्छा, इफ mg sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, समझ गए? इफ mg sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, देन क्या होता, ब्लॉक रुक जाता. क्या हो जाता, ब्लॉक रुक जाता. समझ में आया? तो यहाँ पे अगर mg कैंसिल कर दिया तो tan थीटा अगर लेस देन म्यू है, tan थीटा अगर लेस देन म्यू है, तो ब्लॉक नीचे स्लाइड नहीं करता. समझ गए? अगर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है तो नीचे स्लाइड करता. समझ गए? तो ये जो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू आ रहा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, इसको क्या बोलते हैं, थीटा को क्या बोलते हैं, इसको बोल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू जो आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, ये इक्वल टू अल्फा हो जाता, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू हो जाता. और ये अल्फा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते. क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से अगर कम है एंगल, तो ब्लॉक रेस्ट पे रहता. ब्लॉक किस पे रहता, रेस्ट पे. अगर एंगल और अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन म्यू, तो क्या होता, नीचे स्लाइड करता. ठीक है? क्लियर? समझ में आई बात? देखो, जीरो से एंगल बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जब तक अल्फा आ जाता एंगल, जब तक थीटा की वैल्यू अल्फा तक रीच करती, ब्लॉक वैसे ही रहता. मगर जैसे अल्फा से ज्यादा हो जाती थीटा की वैल्यू, द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है? समझ में आया? और मैं क्या बोला था, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नेट फोर्स, वेक्टर सम ऑफ friction force and normal reaction and frictional force. Vector sum of normal reaction and frictional force. और हमेशा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहता और हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द सरफेस रहता. इसका मतलब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर रहता. तो अगर मैग्नीट्यूड मालूम करना है कॉन्टैक्ट फोर्स का, तो अंडर रूट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर करना पड़ता. ठीक है? समझ में आई बात? तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आता देखेंगे. यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ये सारा लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आता देखेंगे. ठीक है? अच्छा, एक और बात यहाँ पे देखो, थीटा वर्सेस अल्फा है, सॉरी म्यू वर्सेस अल्फा है, म्यू वर्सेस अल्फा.
मतलब म्यू इतना रहा तो अल्फा कितना रहता? जाहिर सी बात है अगर म्यू कम रहा तो अल्फा भी कम रहता, म्यू कम रहा तो अल्फा भी कम रहता, म्यू ज्यादा रहा तो अल्फा भी ज्यादा रहता, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है तो ज्यादा एंगल पे स्लाइड करना स्टार्ट करता। ठीक है, तो देखो 0 पे 0 डिग्री से आया, 1/√3 पे म्यू की वैल्यू 30 डिग्री से आया, 1 पे 45 डिग्री से आया, √3 पे 60 डिग्री से आया, और म्यू अगर इन्फिनिटी हो गया तो 90 डिग्री से आता। तो म्यू कैन बी एनी वैल्यू, म्यू कैन बी थियोरेटिकली इट कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। समझ गए? 1 से ज्यादा भी हो सकता है म्यू, 1 से कम भी हो सकता। और जनरली प्रॉब्लम्स के जो रहते हैं आप लोगों के एक्सरसाइजेस रहते हैं उसमें म्यू के वैल्यूज जनरली 1 से कम देता, तो जनरली स्टूडेंट्स वो चैप्टर करने के बाद ये समझते कि म्यू की वैल्यू 1 से कम रहना, मगर वो एक्चुअली करेक्ट नहीं है, म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है। समझ गए? म्यू की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है। मैं एग्जांपल लिया था गेकोस का, गेकोस कैन कंफर्टेबली वॉक ऑन द और दे कैन स्टे ऑन द वॉल। मतलब क्या है, एंगल 90 डिग्रीज है और वो नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब म्यू की वैल्यू कितना रहना? लिजर्ड्स के लेग्स और उनके लिम्स और वॉल के बीच में कितनी रहना? इन्फिनिटी रहना। ठीक है, नाउ हाउ दैट इज अराइजिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स थियोरेटिकली म्यू की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। समझ में आई बात? क्लियर? अच्छा, वॉल पे इंसान चढ़ सकता? एक्चुअली वर्टिकल क्लाइंबिंग करते हैं लोग रॉक्स पे, ठीक है, मगर वो रॉक्स जो है ना उसमें क्या रहते हैं थोड़े, हाँ नहीं, मतलब वो जो रॉक रहता है, रॉक पे क्या रहते? ग्रूव्स रहते, थोड़े क्या रहते? ग्रूव्स रहते। तो वो ग्रूव्स पे पकड़ के चढ़ते हो, मतलब फ्रिक्शन से नहीं चढ़ते हो, एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन से ही चढ़ते हो। ठीक है, तो वॉल पे जो लोग चढ़ते क्लाइंबर्स, that is not because of friction between their hands, it is actually normal reaction। जो क्या बोलते हैं imperfections रहते हैं ना रॉक में, उस पे फिंगर से जो है ना हैंग करके चढ़ते हो लोग, उन लोगों का स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है फिंगर्स में। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन बेयर कर सकते हैं उनके फिंगर्स क्लाइंबर्स। ठीक है, मगर वो फ्रिक्शन नहीं है, वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है इनडायरेक्टली। क्योंकि देखो एक छोटा ग्रूव है, तो ग्रूव पे जो है ना, देखो ऐसा ग्रूव रहता, ऐसा 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 एक ग्रूव है, तो इस पे हाथ रख के चढ़ता आदमी। ठीक है, तो एक्चुअली वो नॉर्मल रिएक्शन चढ़ा रहा है, उसको फ्रिक्शन नहीं चढ़ा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आता है? देखो कॉन्टैक्ट फोर्स इज √(n² + f²) दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन कम है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कम है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता? mg cos थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा mg cos थीटा है। और फ्रिक्शन क्या हो जाता? इट विल एडजस्ट इटसेल्फ टू mg sin थीटा। तो क्या आया? देखो कॉन्टैक्ट फोर्स mg आया। समझ में आई बात? और इनफैक्ट अगर कॉमन सेंस से भी सोचे तो ब्लॉक तो रुका हुआ है वेट्स पे, उस पे वेट नीचे लग रहा है mg। वेट कितना लग रहा? mg लग रहा, नीचे वेट mg लग रहा, और वो रेस्ट पे है, इसका मतलब उसमें नेट फोर्स 0 है, तो उसको बैलेंस करने का फोर्स भी mg रहना। वो mg क्या है? इट इज द वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आई बात? अगर ऐसा ब्लॉक है, इधर है, इस पे mg लग रहा ना, mg नीचे लग रहा वेट, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ रहता? ऊपर रहता, नॉर्मल रिएक्शन इधर रहता, और उन दोनों का रिजल्टेंट भी mg ही आता। ये mg दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, और जो है ना ब्लॉक ऊपर ही रह जाता, मतलब ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं करता। अच्छा, सपोज अल्फा इज ग्रेटर, समझ गए? अगर अल्फा की वैल्यू, सॉरी थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा है, जब स्लिप होता है ना, तो जब फ्रिक्शन कितना आता है? mg sin थीटा नहीं आता, जब फ्रिक्शन क्या आता? लिमिटिंग आता। लिमिटिंग क्या है? म्यू mg cos थीटा। तो क्या आ गया? ये mg cos थीटा into √(1 + μ²) आ गया, √(1 + μ²). and you can clearly see that this value will not be, this value will not be what? Will not be, at rest. no, this value will not be equal to 1. This value will not be equal to 1. This value will definitely be less than 1. समझ में आया? इसलिए तो एक्सेलरेट कर रहा। क्यों एक्सेलरेट कर रहा? वेट नीचे mg है, और जो कांटेक्ट फोर्सेस आ रहे हैं वो mg से कम है। वो कांटेक्ट फोर्सेस क्या है? mg से कम है। mg से कम रहे तो ही नेट फोर्स आता ना, अगर mg से इक्वल हो गया तो नेट फोर्स क्या हो जाता? 0 आता। अब प्रूव कर सकते हैं क्या इसकी वैल्यू लेस देन 1 रहती बोल के? कैन यू प्रूव दैट दिस वैल्यू इज लेस देन 1? 1 + म्यू की वैल्यू क्या रहती? देखेंगे। तो देखो एफ कॉन्टैक्ट क्या आता? mg cos थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा। थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल ऑफ जो एंगल है इंक्लिनेशन का वो है। ठीक है, और 1 + μ² को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। 1 + μ²।
हाँ 1 प्लस 1 plus mu square minus हाँ tan स्क्वायर अल्फा. डू यू एग्री? हाँ क्योंकि म्यू इज इक्वल टू क्या, tan अल्फा. tan alpha म्यू इक्वल टू tan अल्फा. अच्छा जल्दी देख के बोलो क्या आ रहा दिमाग में अभी. square हाँ 1 plus tan square alpha sec square alpha सेकेंड स्क्वायर अल्फा आता. हाँ सेकेंड स्क्वायर अल्फा मतलब secant alpha तो ये हो गया सेकेंड अल्फा. समझ में आया? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या आता? secant एक और स्टेप लिख दे रहा हूँ अगर जिसको किसी को याद नहीं है तो. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ये क्या आता? सेकेंड स्क्वायर अल्फा आता. तो क्या आता बोलो एफ कॉन्टैक्ट. mg cos theta secant MG cos theta secant alpha. mg cos थीटा और सेकेंड अल्फा. समझ में आई बात? नाउ वी नो दैट क्या बोले? we know that theta is greater than alpha. We know that theta is greater than alpha. Theta is greater than alpha. इसीलिए तो स्लिप हो रहा ना, इसीलिए स्लिप हो रहा. थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा. थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा. इसको एक और स्टेप में मैं ये लिख सकता हूँ कि एफ नेट इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा बाई, बोलो भाई 1 by कॉस थीटा बाई cos alpha कॉस अल्फा. डू यू एग्री? कैसे आया? 1 by सीकेंड को 1 बाई कॉस लिख सकते. समझ में आया? ठीक है. अब मेरे को ये बोलो अगर थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा है तो न्यूमरेटर बड़ा रहता कि डिनोमिनेटर? theta देखो भाई थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा ना. इधर देखो यहाँ पे क्या है? थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा. इफ थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा कैन आई राइट cos थीटा इज great लेस देन cos अल्फा. देखो थीटा बड़ा रहा तो cos थीटा की वैल्यू कम हो जाती, राइट? अगर एंगल बड़ा रहा तो cos की वैल्यू कम रहती, एंगल छोटा रहा तो cos की वैल्यू ज्यादा रहती. cos 0 1 है, cos 30 √3/2 है, cos 45 1/√2 है, cos 30 cos 60 1/2 है, cos 90 0 है. तो जैसा जैसा थीटा बढ़ता जा रहा वैसा वैसा cos थीटा की वैल्यू कम होती जा रही. समझ गए? अगर थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा देन cos थीटा इज लेस देन cos अल्फा. तो विच इज ग्रेटर हियर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर बड़ा है तो एफ नेट. देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एफ नेट इज less than लेस देन mg. समझ में आया? क्लियर? समझ में आ गया अम्मा? तो इसीलिए क्या होता, बैलेंस नहीं होता और वो कुछ एक्सेलरेशन रहता उसका डाउन द इंक्लाइन प्लेन. अगर mg के इक्वल रहता ना, लास्ट केस में mg के इक्वल था जब क्या था? रेस्ट पे था. रेस्ट पे था. अब समझ में आ गया? tan इनवर्स की ये समझ में आ गई लॉजिक? थोड़ा एक क्लैरिटी देता हूँ आप लोगों को. देखो if theta 1 is greater than theta 2 then sin theta 1 is also greater than sin theta 2 and cos theta 1 is नहीं tan बोलो पहले. tan theta 1 is greater than tan theta 2 and cos theta 1 is less than very good cos theta 1 is less than cos theta 2. तो क्योंकि साइन और tan आर इंक्रीजिंग फंक्शंस एंड cos इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. कहाँ पे? 0 और 90 के बीच में. देखो हम लोग जो भी एंगल्स लेते हैं ना मैकेनिक्स में वो कौन से कौन से रेंज में रहते हैं? 0 से 90. जब भी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स निकालते हैं और एंगल्स देखते हैं, एंगल्स जब लेते हैं वो एंगल्स किसके बीच में रहते हैं? 0 से 90 के बीच में. समझ में आई बात? देखो भाई साइन थीटा और cos थीटा अगर पूरा देखे तो कभी इंक्रीज होता है साइन थीटा, कभी डिक्रीज होता. cos थीटा भी कभी इंक्रीज होता, कभी डिक्रीज होता. tan थीटा भी increase होता है decrease होता है. tan थीटा हमेशा इंक्रीज होता. tan थीटा हमेशा इंक्रीज होता. मालूम? अगर ग्राफ देखे tan थीटा का तो tan थीटा हमेशा इंक्रीज होता. देखे ग्राफ कभी tan थीटा का? हाँ दिखा है. देखे? हाँ नहीं देखे? देखो साइन थीटा का क्या है? देखो वो वेव फॉर्म y इक्वल्स टू साइन थीटा. देखो y इक्वल्स टू
अब यहाँ पे x ले रहा हूँ, इट इज नथिंग बट साइन थीटा ओनली। देखो ये ग्राफ देखो कैसा है, ये ग्राफ कैसा है, कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, दिख रहा? 1 और minus 0 से 90 तक इंक्रीजिंग है, 90 से 180 तक डिक्रीजिंग है, ऐसा बढ़ रहा, कभी कभी कम हो रहा। ये साइन थीटा का ग्राफ है, ठीक है। कॉस थीटा का ग्राफ सेम रहता, थोड़ा सा हटके रहता, थोड़ा समझ के क्या रहता, हटके रहता। देखो पाई बाय 2 से पीछे हटके रहता कॉस का, ठीक है। ये भी कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है। मगर एक चीज देखो, 0 से 90, 90 कहाँ पे है, यहाँ पे 0 जो मैक्सिमम वैल्यू है ना ग्रीन कलर की, वो 90 है, समझ गए? मतलब पाई बाय 2 रेडियंस है वो, ये पाई बाय 2 रेडियंस है। यहाँ तक देखो, यहाँ तक 0 से लेके पाई बाय 2 तक देखो, साइन इज ग्रीन वाला साइन है, हाँ भाई पाई बाय 2 मतलब 3.14/2, 3.14/2 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.6, समझ गए? तो समझ में आई बात भाई? पाई बाय 2 मतलब क्या, 3.14/2, 3.14/2 क्या होता, 1.6 होता है अप्रोक्सीमेटली। तो देखो 0 से लेके 1.6 दिख रहा है एक्स एक्सिस पे, मतलब 0 से लेके पाई बाय 2 तक 90 डिग्री तक। साइन इज इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा, कॉस इज डिक्रीजिंग दिखाई दे रहा। टैन भी लगा दे तो देखो टैन क्या है, टैन एक्स, देखो टैन में इंक्रीजिंग ही है, दिख रहा, पाई बाय 2 तक इंक्रीजिंग रहता, इंफिनिटी हो जाता। और एक बात देखो, साइन और कॉस कभी, वो ऑरेंज वाला टैन है, ऑरेंज वाला टैन है, 0 से इंफिनिटी जाता, फिर माइनस इंफिनिटी चले जाता सेकंड क्वाड्रेंट में, समझ गए? ऐसा रहता ग्राफ टैन का। एक चीज गौर करो यहाँ पे, सुनो, साइन कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, दिख रहा, कॉस कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, दिख रहा। देखो अपनी रेंज के लिए तो इंक्रीजिंग है साइन और टैन, अपनी रेंज के लिए तो कॉस डिक्रीजिंग है, मगर पूरी रेंज देखे अगर थीटा की, तो कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है। कौन है? साइन और कॉस, साइन और कॉस कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, और मगर टैन हमेशा इंक्रीजिंग है, दिख रहा। रीजन बोलूं क्यों? साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस, कॉस की वैल्यू कभी पॉजिटिव रहती कभी नेगेटिव रहती, इसका मतलब स्लोप कभी पॉजिटिव रहता कभी नेगेटिव रहता। कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन का भी कभी नेगेटिव रहता कभी पॉजिटिव रहता। और टैन का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट स्क्वायर, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं रहता, इसलिए इसका स्लोप कभी नेगेटिव नहीं रहता। तो स्लोप विल डिटरमाइन वेदर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्लोप पॉजिटिव रहता है फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव रहता है फंक्शन इज डिक्रीजिंग। समझ में आया अम्मा? क्लियर? ओके, क्या अम्मा? डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएशन, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो लिखेंगे यहाँ पे थीटा, इफ थीटा इज बिटवीन, बोलो जल्दी बोलो, 0 to 90 इफ थीटा, ऐसा लिखेंगे, इफ थीटा 90 डिग्रीज देन sin theta will increase. and cos theta are increasing functions, Sir, cos theta decreasing है, sorry sin theta and tan theta tan theta increasing functions, ठीक है, sin theta and tan theta are increasing functions। और cos theta is, बोलो, decreasing function। समझ में आई बात? समझ में आया? यस सर। ओके, ये वाला देखो, यहाँ पे 3 ब्लॉक्स है, ये कितना है, 3 kg का, 2 kg का और 5 kg का, ठीक है। म्यू इक्वल्स टू 0.5, म्यू इक्वल्स टू 0.5, समझ में आया?
इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगा है, कितना लगा है? 100 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लगा है, ठीक है। Now find the acceleration of the blocks as well as tensions. Tensions here. ये क्या लेंगे टेंशन? T2. T1 और ये क्या लेंगे? T2. समझ में आई बात? जल्दी करो, सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करना बोलो? सबसे पहले पूरे सिस्टम के लिए क्या अप्लाई करना? न्यूटन्स Second. सेकेंड लॉ अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना? न्यूटन्स सेकेंड लॉ अप्लाई करना। अच्छा, क्या क्या? पहले सेकेंड लॉ अप्लाई करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। ये 2 kg है, नहीं 2 kg नहीं, कितना था? 3 kg. यहाँ पे लिख देंगे 3 kg, 2 kg. 2 kg, 5 kg। समझ में आया? अच्छा, इधर नॉर्मल रिएक्शन कितना आता बोलो? MC. इधर नॉर्मल रिएक्शन कितना आता? 3g आता। 3G, इधर कितना आता? 2G, 2g आता। 5G, और इधर नॉर्मल रिएक्शन कितना आता? 5G. 5g। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। अच्छा, म्यू इज इक्वल टू 0.5 ऊपर लिख दे रहा हूँ। अब लिमिटिंग फ्रिक्शंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शंस। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आता? 0.6. नहीं, 1.5. 1.5. तो इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर आता, कितना आता? 1.5. F1, F2 एंड F3। और मैं ऑब्वियसली डायरेक्शन इधर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि द फोर्स इज ट्राइंग टू पुल इट टू द राइट, तो फ्रिक्शन विल बी इन द डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन। तो एक काम करेंगे, लिमिटिंग जो है ना स्टार्स लिखेंगे हम लोग, ठीक है? ये क्या है? स्टार। स्टार मतलब लिमिटिंग, खाली एफ लिखे तो एक्चुअल फ्रिक्शन, ठीक है? तो F1 इक्वल टू क्या आता? F1 1.5. म्यू इंटू 3। तो म्यू देखो, एफ लिमिटिंग क्या होता? यहाँ पे म्यू mg, म्यू mg, और पहले म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे, विच इज इक्वल टू म्यू mg। म्यू mg कितना आता? जल्दी बोलो। 1.5. सर F1 का 1.5, ये 1.5 जी, और ये कितना आता? ये 1 सर, 1G. 1G, जी आता है। और ये कितना आता? और ये 2.5G. 2.5 जी आता। ठीक है, समझ में आई बात? ओके। अगर जी हम लोग ले लेंगे 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना आता? 25 न्यूटन। ये क्या आता? 10 न्यूटन। और ये 10 न्यूटन, और ये कितना आता? 15 Newton. 15 न्यूटन। डू यू गेट दिस? अच्छा, तो नेट अब ये देखेंगे अप्लाइड फोर्स कितना है। 100 Newton. अप्लाइड फोर्स इज 100 Newton. 100 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, नेट लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ रहा? नेट लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब तीनों का मिला के 50. 50 न्यूटन आ रहा। Yes. दैट मींस अप्लाइड फोर्स इज एक्सीडिंग द लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट? Friction 50. हाँ, इसलिए क्या हो जाता? फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब अप्लाइड फोर्स एक्सीड हो गया लिमिटिंग के, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू प्ले आता, ठीक है, वो कितना रहता? इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शंस। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सिंस बोलो भाई, Applied force is अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स net. Net limiting friction exceeds exceeds net limiting net limiting friction 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 generated, frictional force generated is 50 and equals Limiting friction. limiting limiting friction.
फ्रिक्शन। समझ में आई बात? समझ में आया? तो अब अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। F net is equals एफ नेट इक्वल्स टू to M. एम ए। तो ये फॉर होल सिस्टम कर रहे हैं ना, Yes. फॉर होल सिस्टम। तो क्या था बोलो, एफ नेट क्या था? 100 न्यूटन राइट पे लगा रहे हैं आप, माइनस नेट फ्रिक्शन कितना आ रहा? 50 न्यूटन आ रहा, 50 न्यूटन इक्वल्स टू टोटल मास क्या है? 10. 3 प्लस 3 plus 2 plus 5 10 इंटू ए। into तो ए क्या आता? 5 meter. ए इक्वल्स टू 5 5 meters per सेकेंड। second आ गया, ए की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं? इंडिविजुअली एक एक ब्लॉक पे लगाना। सेकंड लॉ, इंडिविजुअली एक एक ब्लॉक पे लगाना। तो ये 3 केजी ब्लॉक ले लो। तो ये यहाँ पे दिस इज सेकंड लॉ फॉर 4. हाँ, अब सेकंड लॉ फॉर Individual mass. नहीं, नेट लॉ, ये सेकंड लॉ फॉर किसके लिए लगा रहे हैं अभी? 3 केजी ब्लॉक। थ्री केजी ब्लॉक का क्या है हिस्सा बोलो? लिमिटिंग फ्रिक्शन 15 न्यूटन है। तो मैं ये ले रहा हूँ, देखो। तो 3 केजी ब्लॉक यहाँ पे है, दिख रहा? यस सर। तो I'll just erase this because normal reaction vertical direction में we are not interested. We are talking about the horizontal acceleration. तो ये हो गया आपका डायग्राम, ठीक है? तो मेरे को ये बोलो, ये 3 केजी ब्लॉक पे एफ नेट कितना है? 100 एफ नेट 100 है माइनस T1 लगा लेफ्ट पे, राइट? Yes, sir. Yes. और फ्रिक्शन भी लग रहा है लेफ्ट पे। तो 1.5 जी मतलब क्या? 15 न्यूटन 15 न्यूटन इक्वल टू एम ए। एम कितना है? 3। ए अभी फाइंड करें, कितना है? 5। 5 3 into 5 न्यूटन ही आता यूनिट, क्योंकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज न्यूटन। न्यूटन। तो यहाँ से T1 निकल जाता आपका। तो T1 क्या आता? 85, 18, 100 माइनस 15 माइनस 15, 100 माइनस 30, 70. 70। 70. T1 is equals to 70। 70 न्यूटन आ गया, ठीक है? T1 70 आ गया। नाउ लेट अस गो फॉर 2 केजी ब्लॉक। तो 2 केजी ब्लॉक ले लो। तो ये 2 केजी ब्लॉक है आपका, ठीक है? तो 2 केजी ब्लॉक पे यहाँ पे मैं G के बदले 10 न्यूटन लिख दे रहा हूँ, चलता ना? क्योंकि वो G इक्वल्स टू 10 न्यूटन होता, ठीक है? अब यहाँ पे इफ यू अप्लाई दिस फॉर 2 केजी ब्लॉक, नेट इक्वल्स टू एम एन। एफ नेट क्या होता बोलो? राइट पे। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन, अच्छा मैंने एक्सेलरेशन लिखा ही नहीं यहाँ पे। एक्सेलरेशन कितना था इसका? 5 meters per second square। तो जो एक्सेलरेशन के साथ था वो पॉजिटिव लेते, फॉर जो एक्सेलरेशन के अगेंस्ट था वो नेगेटिव लेते हैं। 100 पॉजिटिव लिए, T1 नेगेटिव लिए, और F भी नेगेटिव। F भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो ये निकाल दे के लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन रहता। तो F कितना था? 1.5 G था, 15 न्यूटन था, ठीक है? F कितना था? 15 न्यूटन। अच्छा, इसके लिए F कितना है? 10 न्यूटन। अच्छा, इसका भी एक्सेलरेशन, ये 2G निकाल दे रहा हूँ, आई एम नॉट, दैट इज नॉट यूजफुल नाउ। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन की क्या है? 5 meters per second square। राइट की तरफ है। Right। तो बोलो क्या क्या लिखेंगे? 100 minus minus T1 माइनस T1 minus T1 minus T2 माइनस 10 and uh, F M 2
MA एक और स्टेप लिख देंगे, ठीक है चलता। तो T1 क्या है बोलो, T1 70 अभी फाइंड करें। minus T2 T2 फाइंड करना है, minus 10 10 है, इक्वल्स टू मास क्या है 2, 2 into 10 25 5 तो आ गया T2 आपका, क्या आया T2? 70 minus 60 60 minus 50 50 न्यूटन तो ठीक है, T2 उधर आ जाता, T2 इधर आ जाता, और इधर क्या आता, 50 न्यूटन 70 माइनस 20 50 न्यूटन, 50 Newton ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे यूनिट्स भी लिखना है, खैर एनीवे T2 क्या आ गया 50 न्यूटन। तो हम लोग फाइंड कर दिए, क्या फाइंड कर दिए, T2 एंड T1 फाइंड कर दिए, ठीक है। अब ये देखो, हाँ हाँ अब यहाँ पे देखो, मैं 100 न्यूटन यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 40 न्यूटन, ठीक है। मेरा रेट फोर्स क्या है 40 न्यूटन, समझ में आया, क्लियर, हाँ। हाफ करके देखो, ऑप्शन है यहाँ पे, बिकम हाफ, इसमें इनिशियल हाइट भी नहीं दिया। जरूरत नहीं, इससे निकाल ले सकते, स्क्वायर बाय 2 देखो हाफ का आ रहा क्या क्या। ओके एनीवे करो, जल्दी करोगे। सर अप्लाइड फोर्स कम कर दिए सर। अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन करे, तो सेकंड लॉ क्या बोलता, F net equals to MA Kinetic energy of the body will become half at the height of the earth. अब बोलो F net इक्वल्स टू, सर फॉर द सिस्टम है ना ये, सिस्टम है, सिस्टम है, क्या आएगा देखेंगे ठहरो। हाँ बोलो क्या करेंगे, 40 माइनस नहीं सबसे पहले ये बोलो नेट लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, नेट लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन 50 न्यूटन है, समझ में आई बात। नाउ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स, द Yes, लिमिटिंग sir. फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द Applied अप्लाइड force. फोर्स, समझ में आई बात। हाँ तो F जो होगा फ्रिक्शन 40 न्यूटन जो अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स क्या है 40 न्यूटन 40 न्यूटन which is less than 50 50 न्यूटन न्यूटन, therefore F is equal नहीं वो छोड़ दो, सबसे पहले मेन स्टेटमेंट बोलो, therefore the system that is सिस्टम एक्स will remain at rest, will remain at rest, हाँ, system will remain at rest, reason बोलो, reason force applied to the friction will adjust, the frictional force will adjust to applied force the applied force, रीजन क्या है माँ, लिमिट के अंदर है, लिमिट के अंदर जब है तो एडजस्ट कर लेता फ्रिक्शन अपने आप को, विल एडजस्ट टू द अप्लाइड फोर्स, समझ में आई बात। ओके तो नेट फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 50 न्यूटन नेट फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन एफ नेट इक्वल्स टू कितना 40 न्यूटन, समझ में आई बात। लास्ट टाइम एफ नेट 50 था क्योंकि अप्लाइड 100 था,
इस बार अप्लाइड 40 है, 50 से कम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्ट हो गया 40 पे, फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्ट हो गया 40 पे। समझ में आई बात? क्लियर? तो अब देखेंगे इंडिविजुअल फ्रिक्शंस कितने रहते हैं, इंडिविजुअल फ्रिक्शंस कितने रहते हैं देखेंगे। समझ में आया? तो देखो आप 40 न्यूटन लगा रहे और ब्लॉक रेस्ट पे है, 40 न्यूटन लगा रहे और ब्लॉक रेस्ट पे है, एक मिनट पहले सुनो, पहले सुनो। देखो ये नॉर्मल रिएक्शन निकाल दो, काम के नहीं है, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ठीक है? ओके, अब देखो ये 3 ब्लॉक्स रेस्ट पे है, डू यू एग्री? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स इज 0 सिंस नेट फोर्स इज 0। क्यों है नेट फोर्स 0? बोलो अम्मा। नेट फोर्स 0 क्यों है? क्योंकि अप्लाइड 40 है और फ्रिक्शन भी एडजस्ट हो गया 40 पे। अप्लाइड 40 है और फ्रिक्शनल भी फोर्स भी एडजस्ट हो गया 40 पे, तो दोनों कैंसिल हो गए और सारे ब्लॉक्स रेस्ट पे है। डू यू एग्री? सबका एक्सेलरेशन 0 है। क्या है? 0। समझ में आई बात? अब देखो आप जब 40 न्यूटन लगा रहे हैं, यहाँ पे 40 न्यूटन था ना, ऊपर भी 40 लिखा मैं, ये ऊपर लिखा। हाँ लिखा, इधर 40 न्यूटन है, दिख रहा? ये 40 न्यूटन में से ये जो F1 है, F1 का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 15। ठीक है, तो ब्लॉक 3 kg वाला ब्लॉक जो है ना 15 न्यूटन लगा था, समझ गए? अपना सारा लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई करता, तो 40 में से 15 निकाल दो, कितना बच गया? 25। तो T1 कितना हो जाता? 25। T1 क्या हो जाता? 40 माइनस 15। क्यों करा 40 माइनस 15? क्योंकि 40 kg फोर्स आप लगाए 3 kg ब्लॉक पे, और ऑब्वियसली 40 kg जो है ना 3 kg के लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। 40 kg 3 kg के लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो जितना लिमिट अप्लाई कर सकता करता, 15 अप्लाई कर दिया, मतलब 15 निकाल दिया, वो जो भी बचा जो भी बच जाता वो उधर ट्रांसमिट हो जाता, जो भी बच जाता उधर ट्रांसमिट हो जाता। इसका मतलब 40 में से 15 निकालो, 40 माइनस 15 कितना? 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस 15, भाई 40 न्यूटन लगा है फोर्स 3 kg ब्लॉक पे, उस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 15 न्यूटन नीचे लिखा हुआ है। तो देखो 40 तो 15 से ज्यादा है ना, तो ऑब्वियसली लिमिटिंग आ जाता, किसमें? 3 kg में आया था लिमिटिंग, तो 15 जो है ना उन अपोज करता, 15 अपोज कर दिया, तो 40 में से 15 निकाल दिया, वो कितना बच गया? 25। तो T1 इक्वल्स टू क्या था? 40 माइनस 15 न्यूटन इक्वल्स टू 25 न्यूटन। ये T1 आ गया आपका, ठीक है? अब T1 लग रहा है किस पे जाके? 2 kg ब्लॉक पे लग रहा है ना। T1 किस पे लग रहा? 2 kg ब्लॉक। इसका मतलब 2 kg ब्लॉक पे लग रहा है कितना? 25 लग रहा, ठीक है? 25 और 2 kg का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 10 न्यूटन है, तो 25 तो बढ़ के है 10 से, समझ गए? तो लिमिटिंग आ जाता 2 kg ब्लॉक पे, 10 न्यूटन। ठीक है? 10 न्यूटन, तो 25 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, समझ गए? बाकी का नहीं कम कर सकता, उसके पास नहीं है उतना कैपेसिटी। तो T2 कितना रहता? 25 माइनस 10 न्यूटन। 25 माइनस 10 क्या होता है? ऐसा, हाँ क्या होता? 15 न्यूटन आ गया, ठीक है? तो T2 कितना हो गया? 15। T2 कितना हो गया? 15। अब मेरे को ये बोलो F3 कितना आता? देखो यहाँ पे F1 कितना आया? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। F1 कितना आया? F1 is 15 न्यूटन which is equal to limiting, समझ गए? F2 is 10 न्यूटन 10 न्यूटन which is equal to उसका लिमिटिंग। पर F3 क्या रहता? 25 न्यूटन नहीं 15 न्यूटन। नहीं 15 न्यूटन रहता। कितना रहता? 15 न्यूटन क्यों? क्योंकि इस पे तो 25 है लिमिटिंग, बट लग रहा ही नहीं ना 25। Yes. इसमें पहुंचा कितना? 15 न्यूटन तो F3 क्या रहता? 15 न्यूटन, समझ गए? लास्ट टाइम जो है ना यहाँ पे F1 कितना था? 15 न्यूटन। F2 कितना था? 10 न्यूटन। और F3 कितना था?
25 न्यूटन था। इसका मतलब लास्ट केस में जो है ना सारे इक्वल थे, लिमिटिंग और एक्चुअल फ्रिक्शंस इक्वल थे। यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग है, समझ गए? देखो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है, दिख रहा? ये दोनों के वैल्यूज अलग अलग है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग अलग है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग अलग है, ठीक है? क्लियर? समझ में आई बात? इसका बोलो क्या होता? तो ये सारा मेट दे रहा हूं मैं, और ये भी मेट दे रहा हूं। अब फोर्स जो लगा रहे हैं वो 10 न्यूटन लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? 10 न्यूटन। तो देखो नेट लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? Net limiting for 50. नेट लिमिटिंग इज 50. पूरे सिस्टम में 50. पूरे सिस्टम का, नेट मतलब पूरा। इज कितना? 50 न्यूटन, which is greater than 10 Newton. So net friction will be टेन न्यूटन। समझ गए? क्यों 10 न्यूटन? क्योंकि अप्लाइड कम है तो एडजस्ट हो जाता फ्रिक्शन, समझ गए? एंड ए विल बी, बोलो, ए विल बी जीरो, ए विल बी जीरो, मतलब रेस्ट पे रहता है। समझ में आई बात? अब मेरे को ये बोलो F1 कितना आता? देखो इस पे अप्लाइड फोर्स कितना है? 10 है, और उसका लिमिटिंग कितना है? 15 है। तो F1 क्या हो जाता? वेरी गुड, क्या हो जाता? 10 न्यूटन हो जाता, राइट? F1 क्या हो जाता? 10 न्यूटन। अगर F1 10 हो गया तो फोर्स पूरा खत्म हो गया उधर ही। तो T1 क्या रहता? 0, T2 क्या रहता? 0, F2 क्या रहता? 0, F3 क्या रहता? 0। मतलब उधर तक ट्रांसमिट हो रहा ही नहीं, फोर्स इतना कम लगा है कि पूरा जो है ना 3 kg वाला संभाल ले रहा। मतलब 3 kg में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा, दैट इज इनफ टू कैंसिल द अप्लाइड फोर्स। तो लेफ्ट की तरफ कुछ ट्रांसमिट होता ही नहीं, लेफ्ट की तरफ कुछ ट्रांसमिट होता ही नहीं। समझ में आया ये कैसा करना? देखो फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स बहुत केयरफुली करना, क्योंकि खाली अप्लाई कर दिया आ गया नहीं, हर चीज चेक करना पड़ता। क्या चेक करना? जो फोर्स अप्लाइड है वो लिमिट के बाहर है या लिमिट के अंदर है। लिमिट के बाहर रहा तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर F की वैल्यू F लिमिटिंग के अंदर है तो फ्रिक्शनल फोर्स विल एडजस्ट इटसेल्फ टू द अप्लाइड फोर्स। समझ में आई बात? ओके, एक पूछ रहा हूँ, आप लोग बोलो आंसर। अगर अप्लाइड फोर्स जो है ना 20 न्यूटन है तो आप लोग डायरेक्टली बोलो मेरे को आंसर्स। एक मिनट, ये T1 T2 फाइंड करना है। अब बोलो। F1 क्या रहता? 15 न्यूटन, वेरी गुड। उसके बाद बचा 5 टेंशन, बचा 5 टेंशन ट्रांसमिट होता लेफ्ट की तरफ, तो T1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन रहता, और 5 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं 2 kg पे जिसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10 न्यूटन, तो 5 न्यूटन। तो F2 क्या हो जाता? 5 न्यूटन हो जाता। T2 और T2 क्या हो जाता? 0, और फिर F3 भी हो जाता 0 न्यूटन। समझ में आया? देखो भाई, जब मैं पहली बार प्रॉब्लम करा, हर स्टेप लिखा, लिमिटिंग, ग्रेटर देन, लेस देन, अप्लाइंग सेकंड लॉ, ये सब लिखा। मगर एग्जाम में जब करते कुछ भी नहीं करना, खाली डायग्राम देखना, थोड़ा दिमाग लगाना और सॉल्व कर देना डायरेक्टली। मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नोट्स है, बाद में अगर कभी रिवीजन करना है तो कंफ्यूजिंग रहता अगर मैं डायरेक्ट करा तो, इसलिए इतने सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ। इतना बड़ा नहीं रहता प्रॉब्लम, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेता। मेंस का रहने दो या नीट का रहने दो, समझ गए? 1 मिनट से ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेता। अगर 1 मिनट से ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम ले रहा तो गलत तरीके से कर रहे, समझ गए? अब एडवांस की बात अलग है। एडवांस के कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी रहते, 15 मिनट भी ले सकते, 1 घंटा भी ले सकते, कुछ लोगों के लिए 1 जिंदगी भी ले सकते, समझ गए?
ठीक है, वो बात अलग है, छोड़ दो, एडवांस की दुनिया अलग है। बात कर रहा हूँ नीट की और मेंस की। मेंस का प्रॉब्लम अगर करेक्ट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं आप तो 1 मिनट में हो जाना, और वर्स्ट केस सिनेरियो 2 मिनट में हो जाना। उससे ज्यादा ले रहे तो खत्म, आपका अप्रोच रॉन्ग है बोले। ठीक है, क्लियर? ओके, एनीवे नेक्स्ट। ये प्रॉब्लम थोड़ा केयरफुली देखो। यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर और एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो सरफेस है नीचे वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है, क्या है? मतलब फ्रिक्शनलेस मतलब mu equal to 0. स्मूथ है, क्या है? स्मूथ देता, क्वेश्चन में यहाँ ऐसा देता, म्यू इक्वल टू 0 देता, दो बोथ मीन द सेम थिंग, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे जो दोनों के बीच में सरफेस है, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बीच में जो सरफेस है वहां पे म्यू इक्वल्स टू 0.5 है, ठीक है। समझ में आई बात? ये 3 kg का ब्लॉक है और ऊपर वाला जो है ना 2 kg का ब्लॉक। समझ में आई बात? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दिस के अगर 3 kg ब्लॉक पे मैं 100 न्यूटन फोर्स लगाया, 3 kg ब्लॉक पे मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स? कौन से है ब्लॉक्स? 3 kg वाला और 2 kg वाला। 100 कितना बोला मैं? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन फोर्स लगाया तो क्या रहता एक्सेलरेशन किसका? 3 kg ब्लॉक का और 2 kg ब्लॉक का, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन। नो, यहाँ पे हमेशा दो पॉसिबिलिटीज रहते। एक पॉसिबिलिटी, दो ब्लॉक्स एक साथ मूव हो सकते अगर दो ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग नहीं रही तो। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? गिरने की बात छोड़ दो, बात की बात है, हाँ, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है देखना है हमको, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? दोनों ब्लॉक्स मूव होते पर दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी कुछ रिलेटिव मोशन रहता। दैट मींस द 2 kg ब्लॉक विल स्लिप ऑन 3 kg ब्लॉक, थोड़ा स्लाइड करता। दो पॉसिबिलिटीज। समझ में आई बात? समझ में आई ना? क्या बोले अम्मा? किसका 2 kg का कम रहता, 3 kg का ज्यादा रहता, वो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल रहता, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स कैसा करना गौर से देखो, सी वॉच केयरफुली। अब जो है ना दो ब्लॉक्स को सेपरेट कर ले रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? सेपरेट कर लेके ये दो ब्लॉक्स को सेपरेट कर ले रहा हूं और फ्रिक्शंस के डायरेक्शंस मेंशन करता हूं मैं। जब 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे 3 kg ब्लॉक पे, ठीक है, तो 3 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहता? ऑपोजिट रहता ना, तो इधर रहता फ्रिक्शन का डायरेक्शन, इस पे इधर रहता, ठीक है। 2 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर रहता? इधर रहता। कैसा मालूम इधर रहता? इधर दोनों अपोज करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब अगर 2 kg वाला 3 kg वाले पे लेफ्ट की तरफ F लगा रहा तो 3 kg वाला 2 kg वाले पे राइट की तरफ F लगाता। डू यू एग्री? यानी तो ऐसा भी बोल सकते कि 2 kg वाले को मूव कौन कर रहा है एक्चुअली? 3 kg। 2 kg वाले को कौन सा फोर्स मूव कर रहा है? F ही मूव कर रहा। तो ऑब्वियसली 2 kg वाला मूव हुआ तो कौन से साइड होता? राइट की तरफ होता। तो फ्रिक्शन भी तो राइट पे लगना, फ्रिक्शन भी राइट पे लगना। समझ में आई बात? तो यहाँ पे एक और कंक्लूजन है कि जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन रहता ना वो वेलोसिटी के साथ भी रह सकता है, वेलोसिटी के ऑपोजिट भी रहता है। एक्सेलरेशन के साथ भी रह सकता है, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट भी रह सकता है। समझ में आई बात? ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब भी ये प्रॉब्लम आता पहले मैं ये एज्यूम करता हूँ, जब भी ये प्रॉब्लम आता पहले मैं ये एज्यूम करता हूँ कि दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहे, दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहे। हम लोग चेक करेंगे जा सकते कि नहीं, हम लोग चेक करेंगे जा सकते कि नहीं। पहले blindly you assume that both are moving in
मूविंग टुगेदर, समझ गए? सपोज both blocks move together, both have same acceleration, a2 equals to a3 equals to a, 2 का 2 kg है, 3 का 3 kg है, समझ जाओ, ठीक है? दोनों का एक्सेलरेशन क्या है? a, समझ में आया? तो सेकंड लॉ लगाओ। सेकंड लॉ क्या बोलता है? F net equals to ma. M हो गया 5 total. तो एफ नेट क्या हो गया? नहीं नहीं, एफ नेट क्या है? 100 न्यूटन है ना, 100 Newton. इक्वल्स टू दोनों का मास मिला के 5 kg है इनटू ए, तो इंप्लाइज ए इक्वल्स टू 20 Newton. 20 मीटर पर Second square. समझ में आया? इसका मतलब क्या, दोनों जो है ना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव हो रहे, दोनों 20 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहे। Move over. नाउ लेट अस चेक whether friction is enough to cause this acceleration in 2 kg block, समझ में आया? Now we shall check whether the friction is enough. यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो, देखो देखो। हाँ, तो मेरे को ये बोलो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन F Zero. limiting equals to mu into normal Mu into normal. तो mu है 0.5, Normal 2. नॉर्मल रिएक्शन होता 2 into 2G. 2g होता, समझ गए? The 3 3 कैसा होता? दोनों के बीच में ना नॉर्मल, देखो नीचे के सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है ना, ऊपर के सरफेस, हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता? 2g रहता, 2G. समझ गए? तो कितना आ गया? सब्स्टिट्यूट करें तो 1G आता. 1g आता, तो 10 न्यूटन आता, क्या आता? 10 Newton. तो F लिमिटिंग क्या है? 10 Newton है. 10 10 Newton. न्यूटन। अच्छा, ये अब बोलेंगे F required to move 2 kg block More than 20. with क्या आया? 20 मीटर पर सेकेंड पे, समझ में आया? जी क्या है? 10. जी की वैल्यू क्या है अम्मा? 10 Newton. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, तो 0.5 into 2 क्या होता? 1. हाँ। G is equals to 10 Newton. अच्छा ठीक है, F required to move 2 kg block with 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, is 10 Newton. 40 Newton. 40 Newton. ऐसा है? G into F is equal to ma, F is equal F equal to ma, समझ गए? ठीक है, तो जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है 40 है, मगर लिमिटिंग क्या है? 10 है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, बट द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन, समझ गए? देखो भाई, ऊपर वाले को मूव करने के लिए 20 से, जैसा हम लोग एज्यूम करे थे, उसके लिए 40 न्यूटन फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, पर लिमिट क्या है आपकी? 10। तो 40 अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन इज देयरफॉर block will be at rest. both blocks don't move Will be at rest. Don't? Don't move. together. That means A2 is not equal to A1. assumption गलत था, A2 is not equal to A1, A1. समझ गए? ठीक है, और कॉमन सेंस अगर अप्लाई करें तो क्या होता मालूम? 3 kg वाले का 20 से ज्यादा आता और 2 kg वाले का 20 से कम आता, समझ गए? ठीक है, देखेंगे। नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो अब ये F कितना है? F इक्वल्स टू F स्टार, समझ में आई बात? क्योंकि लिमिट के बाहर जब चले जाता तो फ्रिक्शन इक्वल टू लिमिटिंग हो जाता, समझ गए? अब मेरे को ये बोलो, इसका एक्सेलरेशन क्या लेंगे ऊपर वाले का? 8. 20 meters per second square. A2 नहीं 20 इट कैन नॉट बी, ये A2 लेंगे और ये क्या लेंगे? A1. A1, A2 और A1 ले लेंगे, ठीक है? अब मेरे को ये बोलो A2 की वैल्यू क्या आती?
A2 इक्वल्स टू और F इज इक्वल टू MA लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे? Equals to F MA. इक्वल्स टू MA. MA, तो F रेट इक्वल्स टू MA क्या हो जाता बोलो? 100 Newton. नहीं 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 नहीं, ये 2 kg ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, फॉर 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे कौन सा है नेट फोर्स? फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के अलावा कुछ लग रहा ही नहीं उस पे, टेंशन लग रहा, कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा, या नहीं. डायरेक्ट फोर्स लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, तो एक ही फोर्स लग रहा है उसको मूव करने के लिए, फ्रिक्शन। Friction. इक्वल टू लिमिटिंग है, इक्वल टू लिमिटिंग, तो क्या है? एफ नेट क्या है? तो F. लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था भाई? 10 न्यूटन था ना? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या था? 10 Newton. 10 न्यूटन इक्वल्स टू 2 2 into A, A. 2, तो A2 इक्वल टू 5 meters per second 5 square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं बोला ना कम आता बोल के, Yes, so 20 से कम आता बोला, ठीक है? तो A2 इज इक्वल टू 5 meters per 5 second मीटर पर square. सेकंड स्क्वायर आ गया। Yes, so वो गिरता या नहीं गिरता हम लोगों का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? हम लोग का क्वेश्चन क्या है? स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है? इन द बिगिनिंग वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन, इवेंचुअली क्या होता अपना वो काम नहीं है, ठीक है? एक्चुअली वो भी पूछ सकता, देखेंगे। खैर एनीवे, अब फॉर 3 kg ब्लॉक देखो, ठीक, 3 kg ब्लॉक पे एफ नेट क्या है बोलो? 100 Newton. नहीं नहीं नहीं, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए पे अगर गौर करें आप, तो एफ नेट क्या लग रहा है देखो 3 kg पे, देखो देखो उसका एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, और उस पर राइट की तरफ 100 न्यूटन लग रहा, और लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन लग Friction रहा। लग रहा. तो देखेंगे, तो ए के साथ का पॉजिटिव ले ले रहा हूँ 100 माइनस ए के अगेंस्ट क्या है 10 ना। 10. आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट्स बट यू अंडरस्टैंड, ठीक है? इक्वल्स टू एम, एम 10. कितना है? 3. 3 ए 20 3 A equals नहीं है ना 20, वही तो बोल रहा हूँ। 20 एक साथ मूव हुए तो आता था, एक साथ मूव हुए तो आता था, पर यहाँ पे नहीं आता, ठीक है? समझ में आई बात? 30 तो A3 इक्वल टू क्या आता? 30 meters per second square. तो देखो पहले हम लोग क्या समझे थे, दोनों साथ मूव है तो इसका इसका दोनों का 20 आता बोल के सोचे, पर स्लिपिंग हो रही दोनों के बीच में, इसलिए इसका 20 से ज्यादा हो गया, नीचे वाले का ऊपर का 20 से कम हो गया, इसका 30 आया और उसका 5 आया। समझ में आई बात? Yes, so क्लियर? एक और बात बोलता हूँ मैं, जो अगर स्लिपिंग हो रही दो ब्लॉक्स के बीच में, तो ऊपर वाले के ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमेशा इक्वल टू म्यू जी रहता। क्या रहता? म्यू जी। क्यों? उस पर फोर्स लगता म्यू एम जी, और उसका मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए लिखते, एम एम कैंसिल हो जाता, म्यू जी आता। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा मेरे को ये बोलो, मेरे को ये बोलो, अगर दोनों स्लिप नहीं होना है तो म्यू की वैल्यू कितनी होना मिनिमम? दोनों अगर स्लिप नहीं होना है तो म्यू की वैल्यू कितनी होना? 0 रही तो जीरो अगर रहा ना तो ऊपर वाले का जीरो आता एक्सेलरेशन, खाली नीचे वाला निकल जाता, नीचे से ऊपर वाला मूव भी नहीं होता, उसका एक्सेलरेशन जीरो रहता। मैं ये पूछ रहा हूँ, देखो अगर दोनों साथ जाना है तो म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी रहना? देखो अगर दोनों साथ जा रहे, दोनों साथ जा रहे तो दोनों का 20 रहना, दोनों का 20 रहना, तो ऊपर वाला भी 20 से जाना, तो ऊपर वाले पे फोर्स रिक्वायर्ड कितना रहता फ्रिक्शन का? 40। हाँ 40 ऊपर वाला अगर 20 से जाना है तो उस पर फोर्स कितना लगता? 2 into 20, 40 न्यूटन लगता, तो फ्रिक्शन 40 प्रोवाइड करना पड़ता। पर इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 20। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 20। तो फ्रिक्शन कितना रहना पड़ता? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 रहना पड़ता। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो फॉर नो स्लिपिंग between the blocks, both must move with 20 meter per second. an equal acceleration of 20 meters per second square। ठीक है, समझ में आई बात? So therefore 2 kg block
to move with 20 meters per second square requires a force of 40 Newton. 40 Newton. frictional force of requires a Frictional force of 40 Newton. 40 न्यूटन। समझ में आई बात? Yes, so. Therefore limiting friction must exceed 40 न्यूटन। समझ गए? समझ में आई बात? तो ये मैथमेटिकली कैसा लिख सकते हैं बोलो? म्यू इंटू m2 इंटू g मस्ट बी ग्रेटर देन 40 न्यूटन। समझ में आया? तो म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। म्यू इंटू m2 कितना है? 2 kg। g कितना है? 10। तो म्यू मस्ट बी Greater than or equal to 2. ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो कंक्लूजन क्या है? मिनिमम Value is 2. वैल्यू ऑफ Minimum Mu. required पर नो स्लिपिंग। for both the blocks to move together is वही मीनिंग होती ना, नो स्लिपिंग मतलब वही है, इज 2। अच्छा, यूनिट्स है कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नहीं है? नहीं। क्यों? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्सेस ना, same. रेशियो ऑफ विच फोर्स टू विच फोर्स? Frictional force to normal reaction. दोनों के यूनिट्स कैंसिल हो जाके यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है यूनिटलेस? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? Yes. समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन देखो। देखो भाई, सपोज सपोज एक सुपरमैन है। सुपरमैन मतलब उसका मीनिंग क्या है? उसका जो पावर है उसकी कोई लिमिट नहीं रहती। समझ गए? ठीक है। हाँ, क्या कर रहा? अनलिमिटेड है। तो सुपरमैन इज रनिंग इन ए 100 मीटर्स रेस। ही इज पार्टिसिपेटिंग इन ए 100 मीटर्स रेस। समझ गए? तो 100 मीटर्स रेस में पार्टिसिपेट कर रहा। 100 मीटर्स रेस मतलब जो हुसैन बोल्ट भागता ना, 9 पॉइंट सम, हाँ 9.58. हाँ, कुछ 9 सेकंड्स के आसपास में कंप्लीट करता हो, तो वो है 100 मीटर्स रेस। तो 100 मीटर्स रेस में पार्टिसिपेट कर रहा सुपरमैन। अब सुपरमैन के तो कोई लिमिट नहीं है ताकत की, ठीक है? हाँ, तो हम लोग को यह फाइंड करना है कि 100 मीटर रेस कितने टाइम पे खत्म कर सकता है सुपरमैन। आंसर क्या है? हाँ, infinity. एक शेक वो गलत है। बात आ देखो, कितने सेकंड में करता? 2-3 सेकंड्स में 100 मीटर्स करता। कर सकते हैं एक्चुअली, मैं बोलता हूँ कैसा, ठीक है? तो सुपर, हाँ है सरफेस पे डिपेंड। हाँ फ्रिक्शन हाँ, तो फ्रिक्शन पे डिपेंड करता कि इन कितनी टाइम पे कवर करता। अच्छा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.5। म्यू कितना है? 0.5। एक बात बोलता हूँ मैं, जो भी आदमी चल रहा ना आगे एक्सेलरेट कर रहा सुपरमैन भागते हुए, वो कौन से फोर्स की वजह से आगे जा रहा? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन हिज शू एंड ग्राउंड। उसके शू और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, उसी के दम पे आगे जा रहा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ सकता हो कोई भी आदमी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आइस है, आइस पे चल नहीं Slip हो सकते, जाते हैं। आपके पैर आगे पीछे होते मगर आप आगे नहीं जाते। ठीक है, क्लियर? पूरा आइस है और आप जो है ना शू पहने और कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ सकता आदमी, उधर ही रह जाता। ठीक है, फ्रिक्शन रहा तो ये आगे बढ़ता। ठीक है, नाउ ये सुपरमैन जो है ना इनफाइनाइट स्पीड से भाग सकता, मतलब पैर तो अपने इनफाइनाइट स्पीड से मूव कर सकता। ठीक है, क्लियर? अब इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता? F max is equal to F limiting। लिमिटिंग से ज्यादा तो फ्रिक्शन नहीं लगता, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता? म्यू mg। समझ गए? समझ में आई बात?
ओके अब बोलो, तो ये जो एफ मैक्स है, दिस इज द फोर्स दैट मूव्स समझ गए? और कोई फोर्स मूव करता सुपरमैन को? नहीं कर सकता। नॉर्मल रिएक्शन कर सकता? नहीं कर सकता। वो ऊपर की तरफ करता, हॉरिजॉन्टली तो नहीं करता वो, ठीक है? तो बोलो F इक्वल्स टू एम ए। F इक्वल्स टू क्या होता? एम ए होता, विच इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो देयरफॉर बोलो A इक्वल्स टू F by UMG म्यू by एम जी बाई एम। M एम कैंसिल हो जाता तो म्यू जी आता। UG तो A इक्वल्स टू क्या आता? 0.5 इंटू 10 विच 10 इज इक्वल टू 5 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। seconds 5 meters per second क्या है? 5 meters per second square 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो सुपरमैन है इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या रहता? 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं आ सकता सुपरमैन का। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू 0.5 है। समझ गए? अगर बढ़ाना है इसको एक्सेलरेशन तो कुछ ज्यादा जो फ्रिक्शन है वो शू करना पड़ता है इसको। समझे? क्लियर? समझ में आई बात? तो कितने टाइम पे 100 मीटर रेस खत्म करता देखेंगे? हाँ कैसा है? 20 सेकेंड्स 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन, स्पीड नहीं। क्या है? एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला भूल गए पुराने? S इक्वल्स टू ut प्लस half 80 square हाफ AT स्क्वायर। u तो 0 है, देखो u 0 है, s 100 है, t मालूम करना है, एक्सेलरेशन 5 meters per 5 second मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाँ तो फाइंड करो क्या आता, जल्दी बोलो। 100 equals to half 2.5 बोलो जल्दी बोलो। 100 इक्वल्स टू हाफ 5 t स्क्वायर। तो t इक्वल टू क्या आता बोलो जल्दी। 20 40 हो गया, 2√10 होता, 2√10 सेकेंड्स, 2√10 सेकेंड। अच्छा 2√10 की वैल्यू क्या आती बोलो अप्रोक्सीमेटली? √10 की वैल्यू क्या है? 3 √10 की वैल्यू देखो क्या है? ठीक है 3.2। तो 3.2 इंटू 2 3.16 3.2। अच्छा ठीक है 3.16 रहा तो क्या आता बोलो? 6.32 सेकंड्स में जो है ना 100 मीटर्स रेस खत्म करता। कौन? सुपरमैन। ठीक है क्लियर? क्लियर? ठीक है। अच्छा 100 मीटर फिनिश करता, रेस्ट से स्टार्ट करा था, ठीक है? रेस्ट से स्टार्ट करा था, ठीक है? क्लियर? जब स्टार्ट करता रेस, रेस से करते ना रेस स्टार्ट, ऐसा नहीं कि भाग के आते रहते दूर से, रेस से स्टार्ट करते रेस, ठीक है? क्लियर? अच्छा एक और चीज, ये परसों जो कुछ दिन पहले आप लोग को मालूम की नहीं कि एक साइबर ट्रक बोल के लॉन्च करा टेस्ला वाला। टेस्ला हाँ, साइबर ट्रक एक साइड फोर्ड लगा था डीजल की, फोर्ड की पिकअप वैन वहाँ की मशहूर जो भी है, नाम भूल गया। एक साइड जो है ना टेस्ला लगा था, दोनों जो है ना टग ऑफ वॉर में टेस्ला जीत जाता। और ये बोलता उन ऐसी वीडियो बना के
कि ज्यादा पावर है टेस्ला में। एक्चुअली पावर पे डिपेंड नहीं करता, एक्चुअली फ्रिक्शन जिसका ज्यादा है उस पर ज्यादा ग्रिप आता और वो स्लिप नहीं होती, समझ गए। अब टेस्ला इसलिए जीता क्योंकि बैटरी रहती उसमें बड़ी, बैटरी वजन रहती, नॉर्मल इंजन से बैटरी बहुत ज्यादा वजन रहती, तो इसलिए उसको ग्रिप ज्यादा आता, फ्रिक्शन ज्यादा आता। जिधर फ्रिक्शन ज्यादा आया वो लोग विन होते, समझ गए। पावर कितना भी रहने दो, टायर तो फिरते रहता, मगर स्लिप हो रहा तो क्या फायदा। हाँ ठीक है, अगर लोड करके लगाए ना वो टग ऑफ वार, तो जो लोड करके है वो जीतता, ठीक है। और एक चीज गौर करो, जनरली जितने भी नॉर्मल कार्स रहते हम लोग जो चलाते छोटे छोटे कार्स, वो पूरे फ्रंट व्हील ड्राइव रहते। क्या रहते? फ्रंट व्हील ड्राइव, मतलब इंजन का पावर आगे के व्हील्स पे लगता, समझ गए क्या माँ? हाँ वेरी गुड। जो बड़े मजल कार्स रहते हैं यूएसए के, समझ गए, मुस्टैंग और क्या बोलते हैं डॉज चार्जर, ये वो रहते ना जो फास्ट एंड फ्यूरियस में चलाते, वो पूरे रियर व्हील ड्राइव रहते। क्या रहते? रियर व्हील ड्राइव। और जितने भी मजल कार्स रहते देखो सामने जो है ना उसका जो बोनेट रहता वो बहुत लंबा रखते। लंबा क्यों रखते? इंजन बड़ा है क्या? नहीं, इंजन बड़ा नहीं है, इंजन पीछे रखना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पावर पीछे के टायर से आ रहा, मतलब ट्रैक्शन पीछे के टायर से आ रहा, तो अगर उस पर ज्यादा वजन नहीं गिरा तो ग्रिप नहीं रहती, टायर्स जो है ना उधर ही फिरते रहते। तो उस पर वजन बढ़ाने के लिए इंजन पीछे की तरफ करके थोड़ा खाली रहता सामने हुड, जो मजल कार्स रहते हैं उसका हुड भर के नहीं रहता, सामने थोड़ा एम्प्टी स्पेस रहता, वो जानबूझ के खाली रख के पीछे रखते इंजन, क्योंकि ज्यादा वजन पीछे की तरफ गिरना। दैट इज द रीजन जो है ना लंबे लंबे हुड्स रहते मजल कार्स के, पीछे की तरफ ज्यादा वेट लगाने के लिए, या पीछे के टायर्स पे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगाने के लिए, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा उतना फ्रिक्शन ज्यादा, जितना फ्रिक्शन ज्यादा उतना ट्रैक्शन ज्यादा। देखो भाई पावर बहुत ज्यादा है गाड़ी में, मगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या फायदा बोलो। टायर उधर ही जो है ना स्लिप होते रहते, बर्न आउट करते खाली, समझ गए। इसलिए क्या करते, वेट ज्यादा लगा, समझ गए। और जानबूझ के वेट बढ़ाते भी गाड़ियों का कुछ, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल जो सुपर कार्स रहते हैं उनके वेट जानबूझ के बढ़ाते, समझ गए। एक्चुअली उतना वेट जरूरत नहीं रहती उन लोगों को, अगर इंजन खाली लगा दिए तो सिग्निफिकेंटली लाइटर रहते, पर जानबूझ के वेट बढ़ाते। अच्छा ठीक है, वेट बढ़ाने का एक और तरीका है। अब देखो थोड़े कार जो है ना कार्बन फाइबर के रहते, जो बुगाटी के कार्स रहते कार्बन फाइबर लाइट रहता। अब लाइट रहा तो टायर्स में वो नहीं आता ना, क्या नहीं आता, ट्रैक्शन नहीं आता। तो कैसा क्रिएट करते हो लोग नॉर्मल रिएक्शन, एरोडायनामिक ऐसा बनाते कि एयर लग के जो है ना दबाती कार को नीचे, तो जो एयर दबा रही ना ऊपर से, उसकी वजह से जो है ना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता और ट्रैक्शन बढ़ता। तो जितना स्पीड जाती है उतना ज्यादा पुश करता है और उतना ज्यादा आपको जो है ना ग्रिप आता, नहीं तो क्या होता, गाड़ी स्लिप हो जाती। बहुत ही स्पीड जा रहे, समझे, 300 पे जा रही गाड़ी और कभी रोड पे टर्न करना है, अगर उतना नॉर्मल रिएक्शन नहीं है तो मुड़ती नहीं गाड़ी, सीधा चलेगा वैसी, समझ गए। इसलिए क्या करते, एरोडाइन पूरे चेंज हो जाते हैं उसके, जो भी उसके क्या बोलते फेंडर्स रहते, रेयर स्पॉयलर्स रहते ना, वो अपने शेप चेंज करके जो है ना ऐसे शेप में आते कि कार को नीचे दबा हाई स्पीड पे, फिर लो स्पीड पे जो है ना फिर शेप बदल जाता उन लोगों का ऐसा। खैर एनीवे, सो फ्रिक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे नॉर्मल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जितना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा उतना फ्रिक्शन ज्यादा, समझ में आया? ठीक है, क्लियर। अच्छा, कोई भी चीज अगर जमीन पे फेंक दिए जहाँ पे फ्रिक्शन है तो एवेंचुअली रुक जाती फ्रिक्शन से, समझ गए, एवेंचुअली इट विल स्टॉप। और उसका एक्सेलरेशन हमेशा इक्वल टू क्या रहता मालूम, एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, रुक जा रही ना, रिटार्डेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू म्यू जी, रिटार्डेशन इक्वल टू क्या रहता, म्यू जी रहता। कैसा मालूम, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता, एम जी रहता। मैं डायग्राम उतार रहा हूँ, मैं बताता हूँ। अब ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू से जा रहा, इनिशियल वेलोसिटी यू से जो है ना मूव हो रहा, और फ्रिक्शन है सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या है, फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट क्या है, म्यू है। क्या है, म्यू है। अब ये क्या होता है, रिटार्ड होता ना, इट विल रिटार्ड, एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में रहता है इसका, और ये क्या है,
इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्ड। क्यों बोलते हैं रिटार्डेशन? क्योंकि यू के ऑपोजिट अगर रहा एक्सेलरेशन तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, यू के साथ रहा तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। डिसेलरेशन भी बोलते हैं, डिसेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एनीवे मैं इधर ही लिख रहा हूँ, एक का डायरेक्शन इधर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस आता। ठीक है, देखेंगे। अब मेरे को ये बोलो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? इस पे इधर रहता, क्या रहता? इधर रहता। फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता? इधर रहता। और एक चीज याद रखो, गोल्डन रूल, जब भी स्लिपिंग हो रही ना, जब भी ब्लॉक के और सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो रही, तो वो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर ब्लॉक मूव नहीं हो रहा, ब्लॉक मूव नहीं हो रहा, तो फ्रिक्शन जो है ना जीरो भी हो सकता, अप्लाइड फोर्स भी हो सकता, लिमिटिंग फोर्स से एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकता। समझ गए? इसका मतलब अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो फ्रिक्शन जो है ना जीरो से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन के रेंज में कुछ भी रह सकता, पर अगर स्लिपिंग हो रही ना तो लिमिटिंग ही है। समझ गए बात? क्या अम्मा? फॉर एग्जाम्पल लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 न्यूटन है अम्मा, मैं 20 लगाया तो फ्रिक्शन कितना आता? 20 आता। 30 लगाया 30 आता, 75 लगाया तो 75 आता, 90 लगाया तो 90 आता, 100 लगाया तो भी 100 आता, 120 जब लगाते जब भी 100 आता। पर जब 120 जब लगाते, जब नहीं स्लिपिंग रहती या रिलेटिव मोशन रहता। इसका मतलब रिलेटिव मोशन है, मतलब फ्रिक्शन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन है और स्लिपिंग हो रही। समझ गए? अगर रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन में भी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में भी इक्वल टू जीरो, और इट कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन जीरो एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ गए? अगर दो सरफेसेस स्लिप नहीं हो रहे तो कुछ भी रह सकता, स्लिप हो रहे तो लिमिटिंग ही रहता। अब ये देखो, यू से मूव हो रहा ना, स्लिपिंग हो रही, तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ गए? बोलो एफ क्या है? देयरफॉर एफ इक्वल टू माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ स्टार। माइनस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे और फ्रिक्शन क्या लेंगे? नेगेटिव। समझ गया? पर एफ इक्वल टू क्या होता? एम ए। समझ में आया? तो यूज करो एम ए इक्वल टू, बोलो अम्मा क्या आता है? एम ए इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? माइनस म्यू एम जी। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? minus mu g, minus mu g, ए इज ऑलवेज इक्वल टू minus mu g. माइनस म्यू। क्लियर? कोई भी चीज अगर जा रही, स्लिप हो रही, तो माइनस म्यू जी रिटार्डेशन से रुक जाती, माइनस म्यू जी रिटार्डेशन से रुक जाती, स्लो होकर रुक जाती लास्ट। समझ गए? क्लियर? क्लियर? हो गया लेक्चर आपका? हो गया ना? क्या बोले? 2 घंटे हो गए, 3 घंटे लेते हुए लेक्चर। एक क्वेश्चन करो। क्या हुआ? A यूनिफॉर्म चेन, यूनिफॉर्म मतलब क्या? उसका जो थिकनेस है और उसका डेंसिटी है वो सेम है, एक जगह हैवी एक जगह लाइट नहीं है, यूनिफॉर्म है चेन। ए यूनिफॉर्म चेन is sitting on a table. Coefficient of friction between chain and surface of the table is mu. क्या बोला मैं? Coefficient of the friction
between the table and the chain is new. Coefficient of friction. Table. और म्यू लिख दो कहीं को ये सब. हाँ, म्यू Mu equal to क्या mu नहीं दिया भाई. is the Coefficient of friction between table and tube. टेबल दिखता है ना ऑलरेडी चेन चेन बोल रहा हूँ चेयर में चेन समझ में आई बात. अब देखो, अगर पूरी चेन टेबल पे रहे तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल पे कुछ नहीं होता, मतलब रेस्ट पे रहती. अगर मैं चेन का कुछ पार्ट हैंग कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो एक लिमिट तक हैंग कर सकता हूँ, ठीक है, जब तक जो है ना टिक के रहती टेबल पे. अगर एक लिमिट से ज्यादा कर दिया तो नीचे स्लिप हो जाती. समझ गए. तो द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ व्हाट मैक्सिमम फ्रैक्शन of the chain can be hung 50% of it. so that chain remains Remains on the table on the table without slipping. without slipping. The upper part must be greater than the That would depend on how big the value of mu is. अगर म्यू 0 है ना, थोड़ी भी हैंग कर दिया तो फिसल जाती. अगर म्यू ज्यादा रहे तो बहुत ज्यादा पार्ट जो है ना संभाल सकता हो. तो म्यू की वैल्यू पे डिपेंड करता है आंसर. आंसर किस पे डिपेंड करता है? म्यू की वैल्यू. पर मैं म्यू की वैल्यू दिया कुछ 0.5 0.3 0.2 म्यू दे दिया ना, तो आंसर भी म्यू के टर्म्स में आता. आंसर भी म्यू के टर्म्स में आता. समझ में आई बात. तो लेट द फ्रैक्शन बी x, लेट द फ्रैक्शन बी समझ गए. तो यहाँ पे ये x रहता और ये फ्रैक्शन क्या रहता? 1 माइनस एक्स रहता. समझ गए. x कुछ भी रह सकता भाई, 1/4 1/3 2/3 कुछ भी रह सकता. ठीक है. अच्छा, इसका मास क्या आता? m2 इक्वल्स टू टोटल मास m इंटू x आता. समझ गए. 1/3 रहा तो m/3 आता, 1/4 रहा तो m/4 आता, 3/4 रहा तो m इंटू 3/4 आता. और यहाँ पे मास क्या आता? m1 इक्वल्स टू m इंटू 1 माइनस एक्स आता. समझ गए. अच्छा, ये जो mx, ये जो m2 है ना, वो जो है ना इस डायरेक्शन में m2g लगाता फोर्स. डू यू एग्री? m2g लगाता. और ये जो m1 है ना, वो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाता. कितना लगाता? म्यू इंटू m1g, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन. समझ में आया बात. देखो, नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से आ रहा? ये मास की वजह से ही आ रहा ना, इसकी वजह से तो नहीं आ रहा ना. ये तो इधर लटक रहा. इधर नॉर्मल रिएक्शन देखो किसकी वजह से आ रहा? ये पार्ट की वजह, m1 की वजह से आ रहा. तो ये है. समझ गए. नाउ इफ, बोलो इफ, बोलो भाई. इफ म्यू m1g is greater than or equal to m2g, the chain Will stay on the table. the chain will not slip. will stay बोल सकते. stay on the surface. समझ में आया. तो देखो सॉल्व करो, आ जाता. बोलो क्या है? म्यू m1 क्या है? m इंटू m1 minus x g must be greater than or equal to m into into g. m cancel, g cancel. Mu into 1 minus x must be greater than or equal to mu 1 by mu. 1 by mu. That means x must be less than, x उधर चले जाता. 1 minus 1 by mu, 1 minus 1 1 by by mu. समझ गए. तो कंक्लूजन क्या है बोलो जल्दी से. Therefore, बोलो भाई. The maximum fraction that can hang
that can hang. That can also be Is equal to उतना ही 1 minus 1 1 by by mu. 1 minus 1 by mu. समझ में आई बात? अगर म्यू 0.5 रहा तो आंसर क्या रहता? 1 minus 1 by 0.5. 1 by point. हाँ वन माइनस 0.5 माइनस 0.5 से माइनस 1 आता है. एक मिनट, कुछ गलती करे यहाँ पे mx नहीं लिखे. m2 क्या है? mx है. m2 क्या है? mx है, मगर हम लोग क्या लिए? m लिए. तो यहाँ पे x भी रहना है कि नहीं? ये x नहीं लिए थे. तो अब बोलो क्या है? अब बोलो x by म्यू आता है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा, वही परेशान हो रहा मैं, नेगेटिव कहाँ से आ रहा. तो यहाँ पे क्या आता? x by mu. एक काम करो, फिर से करेंगे, छोड़ो. ओके, लेट अस डू इट अगेन. हाँ बोलो क्या आता, बोलो, कंटिन्यू. म्यू माइनस म्यू एक्स Mu minus mu x. must be greater than x. X. So that becomes what? Mu must be greater than or equal to X plus. x plus x. Oh, तो कॉमन क्या आता बोलो? mu. x Mu must be greater than or equal to X. mu plus 1. X mu plus 1. plus mu, है क्या नहीं? बोलो बोलो भाई. Mu by 1 plus mu. mu by 1 plus mu. 1 plus mu. तो जब से वही नेगेटिव आ रहा था तो समझ गया कुछ मिस्टेक है, तो वही मिस्टेक था. क्या बोले? मतलब x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आना, अम्मा, पॉजिटिव ही आना. ओके, तो क्या आ गया आंसर? मिनिमम फ्रैक्शन बोलो. Minimum fraction must be equal. Mu 1 plus mu. For the chain. That can hang. That can act on the chain. Hang Making it slip. is Is equal to is mu by 1 plus mu. mu by 1 plus mu. Clear? Yes, so. Okay, tomorrow we will do some problems based on blocks and wedges. ठीक है? Yes, Clear? sir. Practice start करें. Sir, DPPs. DPPs नहीं, एक्चुअली जो मटेरियल में लास्ट में सबसे नीचे मटेरियल में हाँ, थियरी के साथ जो एक्सरसाइज की फाइल लिया, वो एक्सरसाइज की फाइल सारी करो. मैं डीपीपी हाँ, आज अपलोड करता हूँ फिर भी, मगर पहले वो करो, बाद में डीपीपीस करो, ठीक है? जी सर. फर्स्ट कंप्लीट दैट एक्सरसाइज फाइल. ओके, थैंक यू. Thank you, sir.